In this grand gala function today. Dear audience, you will be witnessing two important programs today. And they are, first we'll start up with the orientation program, where you will be getting information about NEP, NCP, NCF, and National Credit System. A prayer casts away our fears, strengthens us, makes us strong, helps us to become stronger day by day. So here, let's all take God's blessings. I call upon Ginny Ma'am to present a sapling to Reverend Sister Pushpa. I call Prabha Madam to present a sapling to Reverend Sister Navya. And Sadat Ma'am, please welcome our resource person Vibha Biji Ma'am with a sapling. Thank you, teachers. I now Manager Sister Pushpa, Vice Principal Sister Navya. Today's resource person, Mrs. Vibha Biji. Dear teachers and dear loving parents and dear loving students, a warm and heartfelt welcome to all the parents gathered here today for our orientation program. It's a pleasure to have join us as we impart. As we are gathered here today, it's important to reflect on the educational framework that guided our
The National Education Policy (NEP), National Curriculum Framework (NCF), and National Credit Framework (NCRF) provide the blueprint for a more holistic, a flexible and inclusive education system for the teachers. Thank you for your tireless efforts and dedication. Last but not least, I want to extend a heartfelt thank you all for the parents gathered here today. ईश्वर मंजिल को चली सवारी, कंधों पे ये जिम्मेदारी। हाथ में फाइल, मन में दम, मीलों मील चलेंगे हम, हर मुश्किल से टकराएंगे, डर से मस न होंगे हम। आज रिजल्ट का दिन है। सब बच्चे अच्छे नंबर से पास हो गए, सभी बच्चे खुश भी थे, पर यह It's indeed a privilege for me to introduce our resource person for today's orientation program. Dear assemblage, Madam Mrs. Vivadaji is a senior teacher of this esteemed institution. And she is having passion. She's also a passionate singer and is having many qualities. She's a creative person with wonderful heart. Ma'am, we welcome you amidst us. And now you have to take the session. Over to you. A very hearty good morning to all present here. May I hear the response, please? Thank you so much. Dear assemblage, we are going to start this orientation on a positive note. And for that, we are going to play a song for you all. And I want everybody to participate in this song. You just need to follow our teachers here on the stage and synchronize with the rhythm of clap. Can we do that? Can we do that? Thank you so much. For that we need to stand. Let's stand and do a small exercise as well and then enjoy. A knowledge superpower. सुनने में अच्छा लगता है ना? Knowledge superpower. After NEP 2020, National Curriculum Framework was framed in 2023. It acknowledges two basic elements, and that is skill development. Right. Very importantly, this is for our 8th standard students. I have given the information right now. मैंने बताया कि स्किल्स जो होती है बच्चों में वो हर बच्चे में या कहें हर इंसान में कुछ न कुछ प्रतिभा जरूर होती है जिसे हम पेरेंट्स भी कभी कभी पहचान नहीं पाते हैं और अगर पहचानते भी हैं तो हमें ये लगता है कि ये सेंसलेस है या फिर बच्चा ये करेगा तो पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाएगा जो भी है तो हम उसे वही डिमोटिवेट करके उसकी
उनकी स्किल्स में चेंज हो जाता है। मैं खुद एक असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पर स्कोप ग्लोबल स्किल यूनिवर्सिटी में अभी कार्यरत हूँ और मैं भी जानती हूँ कि बच्चों में स्किल्स जो होती है वो अंदर से होती है। बच्चों को जो काम करना अच्छा लगता है वो उनकी स्किल्स में चेंज हो जाता है। इसलिए बच्चों को हमेशा मोटिवेट करना चाहिए, पढ़ाई के साथ साथ उन्हें वो सारे काम करने देना चाहिए जो वो करना चाहते हैं। मेरे 2 बच्चे हैं जो इसी स्कूल में पढ़ रहे हैं। बेटी मेरी फर्स्ट में है जो अभी स्टेज पे आएगी, बेटा मेरा 5th में है जो अभी 3rd नंबर पे स्टेज पे। दोनों में बहुत इम्प्रूवमेंट है यहाँ स्कूल में जो कुछ। और ये जो समर कैंप है ये भी एक स्किल को, बच्चों की स्किल को डेवलप करने का बहुत ही अच्छा मौका है। जिन पेरेंट्स ने अपने बच्चों को समर कैंप में भेजा है वो भी ये नोट कर रहे होंगे कि उनके बच्चों में कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर हुए हैं। मैंने तो ये देखा है। और यहाँ के जो टीचर्स थे अभी बीच में भी हम अगर देखें कोविड के टाइम में टीचर्स ने ऑनलाइन क्लासेस लेके कोविड के टाइम में हमें बच्चों के क्लासरूम तक जाने का मौका मिला। हमको देखने का मौका मिला कि बच्चे क्लास में क्या करते हैं, टीचर कैसे पढ़ाती है। तब मैंने नोटिस किया कि जो टीचर बच्चों को पढ़ाती है वो सभी बच्चों पर बिल्कुल सेम तरीके से ध्यान देती है। मेरे बेटे की जो क्लास टीचर्स थी मिसेस तानिया श्रीवास्तव मैम, बहुत अच्छे से टीच किया उन्होंने, बहुत अच्छे से पढ़ाया, ये मैंने देखा था। यहाँ के सभी जो टीचर्स हैं अच्छे हैं, एटमॉस्फेयर अच्छा है, बच्चों का प्रोग्रेस यहाँ होता ही होता है। थैंक यू सिस्टर। बताना की जिम्मेदारी पेरेंट्स की थी, लेकिन स्कूल में क्लासेस ऑलरेडी सक्सेस कर रही थी। टीचर्स ने काफ़ी सपोर्ट किया। नर्सरी में एक बेटी क्लास टीचर कॉम मैडम थी, फर्स्ट वो जब केजी 1 में गए तब श्री आदिक मैडम थी, अभी केजी 2 में है तो जॉर्ज मैडम, सरिता मैडम, इन लोगों ने सभी लोगों ने जो हमारे किंडरगार्टन के बच्चे उनको बहुत सपोर्ट किया। और जो कोरोना काल था उसमें सारे पेरेंट्स काफ़ी हैप्पी थे कि वो बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू उन्होंने हमारे बच्चों को बहुत ग्रो किया और बहुत सपोर्ट किया। मतलब पेरेंट्स के लिए बहुत हैक्टिक था वो समय कि वो कैसे बच्चों को नर्सरी में प्रिपेयर कराएंगे, लेकिन सारे स्कूल के सपोर्ट से, टीचर्स के सपोर्ट से हमारे बच्चों में सारे स्किल्स डेवलप हुए। मेरी बेटी को डांस में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं, सर थे ऑनलाइन जो डांस की वीडियो भेजते थे उनको देख के आज मेरी बेटी डांस बहुत अच्छा करती है। मतलब मैंने नहीं सोचा था कि वो डांस में आगे बढ़ पाएगी, लेकिन वो स्टेज परफॉर्मेंस दे। तो नाउ जो है जो स्टेज में तो एक्चुअली जो एजुकेशन तो स्ट्रेस फ्री होगी ओनली एजुकेशन। तो बच्चों के वो स्ट्रेस के लेवल इतना इंक्रीज हो रही थी कि वो सुसाइड्स में चले जा रहे थे, किसी से बात नहीं कर पा रहे थे, कुछ और स्किल्स डेवलप नहीं कर पा रहे थे। But I am happy that Carmel has taken this new era of the education. Thanks to the Ma'am. अभी मेरी बेटी बच्चे हैं जो सिंगिंग अभी करेगी। तो पहले जब मेरी बेटी थी तो माँ को स्टेज में नहीं आ सकती थी, ना तो स्पोर्ट्स नहीं करती थी, वो नहीं पढ़ाई करती थी, वो भी सही नहीं करती। तो अभी एजुकेशन सिस्टम में जो चेंजेस हुआ है उसके लिए मेरा बेटी अभी सिंगिंग कर सकती है, डांस करती है, तो स्पोर्ट्स भी करती है। थैंक यू वेरी मच। मैं कार्मल रतनपुर की यही कहूँगी, मैं एज ए स्टूडेंट हूँ कार्मल रतनपुर की, मेरा भाई सारे स्टूडेंट है कार्मल रतनपुर के। हम लोग फाउंडेशन जब से देखते हैं जब हम चाइल्ड थे, सारे टीचर्स हमारा इनफैक्ट नर्सरी से 12th तक का स्टडीज पूरा यहीं हुआ है। हमने बहुत ज़्यादा एवरेज देखा है, कार्मल रतनपुर का ग्रोथ देखा है कार्मल रतनपुर का। मेरा बच्चा भी KG2C में है, पहले वो बहुत शाय था बट अभी बहुत सारी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहा है और एवरेज से उसका ग्रोथ इतना हुआ है कि फर्स्ट स्टैंडर्ड की क्लास में। तो थैंक्स टू ऑल माई टीचर्स, माई रिस्पेक्टेड सिस्टर, कि उन लोगों ने हमारा फाउंडेशन
जब से हम देख रहे हैं अभी तक का इतना लेवल हाईअप कर दिया कि दूसरे स्कूल्स में इतना लेवल नहीं है। तो इसलिए हमने अपने बच्चों को कार्मल रतनपुर में डाला ताकि इतना लेवल वो इंग्लिश बोलने लगी, घर में इंग्लिश बोलने लगी, हम लोग को बताती है क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, कैसे बैठना है कैसे नहीं बैठना है, बहुत सारी चीज़ें उसने यहाँ सीखे। तो इट्स रिमार्केबल चेंजेस यू कैन सी इन योर चाइल्ड इफ यू आर एसोसिएटेड विद दिस स्कूल। थैंक यू सो मच मैम। जब उसका एडमिशन कराया तो वो उस टाइम पे कुछ उसकी पर्सनल प्रॉब्लम्स थी, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो कुछ इस कंडीशन से गुजर रहा था कि जब मैं सिस्टर से मिलने आई, सिस्टर रोस्टोन, तो हमने उनको ये बोला कि अगर ये कुछ भी परेशान करेगा, अगर ये गलत कुछ करेगा तो आप बिल्कुल निकाल दीजिएगा। बट मेरे को भरोसा था, मेरा बेटी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, थोड़ा इश्यूज थे, इसलिए वो थोड़ा जिद्दी टाइप था। बट जब हमने नर्सरी में एडमिशन कराया और जैसे ही स्कूल ओपन होने वाले थे 24 मार्च, उसके पहले लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लगना तो फिर ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई, तो सबसे पहले उसको नर्सरी में रश्मि जेकॉब मैम मिली। इतनी प्यारी मैम है वो, आज भी मेरा बेटा जो है वो अपनी फर्स्ट मैम को हमेशा याद करता है, जब भी स्कूल आता है उनसे मिलके जाता है। मतलब वो उसको पहलू की जो क्रश होता है, हमको किसी पे क्रश है तो उसे रश्मि मैम पे क्रश है, उसको पता है कि मैम उसका हमेशा सपोर्ट करेगी। नर्सरी से लेके और अभी तक भी वो फर्स्ट में है मेरा बेटा। उसने कभी एक शिकायत का मौका नहीं दिया कि कभी उसकी मुझे कोई शिकायत मिली हो। मैं खुद वर्किंग हूँ, मेरे हस्बैंड भी वर्किंग है, घर पे अकेला रहता है, मेड रहती है, बट मैं सुबह 10 बजे ऑफिस चली जाती हूँ, वो अपना खुद से पढ़ता, खुद से ऑनलाइन पूरी क्लासेस अटेंड करता था और मैं शाम में आके मैडम से फीडबैक रोज लेती थी, मैम आज क्या हुआ, कोई भी प्रॉब्लम हो। अभी भी फर्स्ट में आया है तो नाइजी मैम उसकी क्लास टीचर है, मोनिका मैम इंग्लिश टीचर है, इन दो से इतना कम्युनिकेशन इतना अच्छा हुआ है मेरा कि मैं हर एक बात, इवन मैंने कल नाइट में भी पूछा मैम स्टूडेंट्स को घर से रेडी करके भेजना है क्या, वो बताने में भूल जाता है, तो मैम 11:30 बजे भी अगर मैं व्हाट्सएप मैसेज करती हूँ तो वो मुझे रिप्लाई देती है। कभी वो इरिटेट नहीं हुए, कोई भी टीचर हो, उसकी जॉयस मैम, रश्मि मैम और एक शीला मैम है हिंदी वाली, मतलब जितनी भी उसकी टीचर्स है वो उनका इतना बड़ा फैन है कि उनके लिए रोता है, उनको याद आती है जब उसको, तो बोलता है मुझे कॉल करके, तो मैं बात करना चाहता हूँ टीचर से, तो मैं उसको कॉल करके देती हूँ, वो बात करता है। क्रिसमस होता है तो उनके लिए उसको सबसे पहले कार्ड्स बनाने, गिफ्ट बनाने, हमेशा उसको ऐसा लगता है कि मतलब मम्मा के बाद मैम है। मैम से वो इतना अटैच्ड है, इतना है कि मैं खुद इतनी इमोशनल हो जाती हूँ। मैम अगर मुझसे मिलती है ना, मुझे कभी ऐसा नहीं लगता कि मैं किसी और से मिल रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है ये मेरी सिस्टर है, ये मेरी फैमिली मेंबर है। मेरे बच्चे को इतना अच्छा यहाँ पे एटमॉस्फेयर मिला है, इतने प्यार से उसको रखा है कि मुझे कभी जरूरत नहीं पड़ी। मैं उसको मुश्किल से 1 घंटा घर पे पढ़ा पाती हूँ, उसके अलावा वो खुद ही पढ़ता है। मेरा सुबह 10 से 7 का जॉब है, मैं भोपाल अप डाउन करती हूँ, रहती मंडीदीप में हूँ, तो वो मुझे फोन पे बताता है, आधे घंटे मेरे को लंच में स्कूल से आके फोन करता है, बताता है मामा आज ऐसा ऐसा हुआ, मैम ने ये बोला, मैं ये कर लूंगा। बट उसने कभी मुझे शिकायत नहीं की। एक्चुअली जब KG 2 में यहाँ स्कूल आना शुरू हुआ, बहुत सेंसिटिव है वो, तो उसने बताया कि एक जो उसके साथ में क्लास में स्टूडेंट है वो उसको परेशान करती है, वो लड़की थी और ये लड़का है, तो उसने बताया, तो मैंने मैम को बोला, तो